Back then, I think people didn't have this much opportunity. I think we were just born in the right time at the right era. ये कोई भी चीज़ खराब नहीं होती है, उसका प्लेसमेंट गलत होता है. किसी कोई बड़ा बुजुर्ग मिला और उसने मुझे बोला कि सफरिंग इज पर्सनल. जब आपका ब्रेकअप होता है ना, आप एक दूसरे को बहुत नास्टी चीज़ें बोलते हैं. Correct. अब आप सोचो तो हंसी आएगी, बट उस टाइम पे आप एक दूसरे को बहुत नास्टी चीज़ें बोलते हो, सॉलिड नास्टी चीज़ें. अब शाहरुख खान को देखो, शाहरुख खान बिकेम ए लवर बॉय आफ्टर 30. तो उन्होंने भी कुछ ना आओ देखा ना ताओ, उन्होंने कहा यार लड़का आ जाओ. उनको आज भी नहीं पता, शायद अब ये देखेंगे तो उनको पता चलेगा. मुझे लगता है अगर वरुण होता इस सिचुएशन में तो what would he have done? कपड़ा तो यार बदल जाता है आपका, ठीक है ना. But yeah, they say that to become that you have to begin with emulating. Like आप जब आसपास होते हो अच्छे लोग हैं ना, तो आप बन जाते. यार हर आदमी को अच्छा बनने में मजा आता है. गिविंग हैज बिकम वेरी ट्रेंडी. tipsy all the fucking time. I don't want, I don't hesitate in saying this. Imagine यार हम सुबह बैठ के बेर पी रहे हैं. Let's talk about roastery. How did the first roastery happen? That- If you've given the opportunity to multi-fucking-ply. Like the moment you get into comfort zone, you are dead. ठीक है, कोई नहीं जानता है इस बात को. And I hope मतलब कि people don't take this in a Fuck it, man. I- Just say I- it. So we are with Nishant today. Nishant is the founder of Roastery Cafe, one of the most happening coffee shop chains in India. Now they've got like a branch in Finland also, right? Which happened when 2024. 2024 December, October. October 2024. So they've got a branch in Europe as well. And helping us today is my friend Nayantara. Nayantara was the AD Hello, Nayantara. on this very prolific, one of the most prolific projects of 2024, movie projects called Kalki. Wow. Yeah, she was the AD That's on that. incredible. So thank you Nayantara for being here and helping us out. So where are you from, Nishant? I was born in Bihar. You were born in Bihar. I wouldn't say where I'm from because I would not even know where I'm from. Okay. But I was born in Bihar. So Bihar is a state in the eastern part of India. Of course. I was born in Hajipur. There's a small village over there. It's called Hajipur. I was born there, and but I've been raised across India. You've been raised across India? Across. How come like your dad was in the army or something? No. So my dad was working in the hospitality sector. Okay. He was not a businessman or something like that, but he was into hospitality in some capacity. So DNA में है मतलब hospitality. हाँ. मेरे grandfather भी थे. My grandfather was also in hospitality. Wow. He was working with Indian Railways, and Okay. my father was also in hospitality. Okay. And then I kind of turned into being the third generation. That's awesome, man. I think you took it like a level further. Trying a bit. I think the market has also expanded, man. I believe. Back then, I think people didn't have this much opportunity. I think we were just born in the right time at the right era. Okay. The opportunities at this point of time is amazing. People who made it, they're all saying we're born in the right time and the right era. People who've not made it, they're like, what the fuck, man? It's the saddest time to be here or some shit like that. I don't think so, because if you look at the graph also, if you look at the thought process, look at the exposure, look at the information, look at the kind of the kind of information that you get these days. Like it's very easily accessible. Like back then, it was not possible. Like back then, if you become big, you would say that it just happened by luck and all of it, right? But now कोई भी कर सकता है. कोई भी कर सकता है. Now people make an effort and it happens. Okay. When did you first come to Hyderabad, man, from Bihar? 2008, I still remember, 4th of June 2008. 4th of June 2008. And why did you come to Hyderabad? What were you first doing in Hyderabad when we were here? I mean, I have never ever told this to anyone, But हमें बताओ. बिल्कुल बनता है. So I was I graduated from IHM Jodhpur, so I was born in Bihar and then finished my 12th standard in Bihar, in Hajipur, the same hometown. And then for graduation, I went to IHM Jodhpur, Rajasthan. After graduation, I came to Delhi and I was working with CCD. That was my first job. You were as a working barista. with Coffee Day? Cafe Delhi? Coffee Day, as a barista. The first, I think, branded coffee shop that we know of. The first, cafe. yeah. They are the one who changed the landscape of coffee in India. They are the 100%. ones, right? Yeah. I mean, we are, because of them. So many people's first date, man. Yeah. Coffee Day. So many people first date, so many people first cup of hang out, cappuccino. first cup of coffee, lot of. It's where they first learned to say cappuccino. 100%. Otherwise, we didn't know how to pronounce that. Yeah, we were calling it something else. Yeah. So, I mean, we owe it to them big time. We are here because of them. If they were not there, we wouldn't have been here for Right. sure. So join them as a barista. Barista is, entry level. Person job. who makes the coffee. Yeah. So I started from there, and then
those days were the Orkut era, if you remember. Orkut. 2007 was the Orkut era. या मामा मेरे लिए एक टेस्टिमोनियल लिखना बाकी. हाँ हम लोग करते थे वो. So I met a girl. I mean, as you said, वो testimonial वाला था. तो I had bunch of good friends. उनको थोड़ा सा beer पिला के अच्छे testimonials लिखवा लिए थे. So I met a girl on Orkut and I fell in love with her. And so she was from Varanasi and I was from Delhi. Wow. I was working in Delhi. And so Varanasi to Delhi बहुत easy था आना जाना उससे मिलना. So I used to go and मेरी सैलरी क्या थी यार उस टाइम में 5,000 रुपये मुझे मिलते 5,000 bucks. 5,000 rupees. And you're talking about 2007. और मतलब वाराणसी जाना बहुत आसान था. लाइक पूरे महीने आप काम करो 20-25 दिन 24-25 दिन 5 दिन की छुट्टी लो और देन गो मीट वाराणसी जाओ गर्लफ्रेंड से मिलो वापस आ जाओ. हाँ जनरल का टिकट कटाओ और फिर आराम से चले जाओ. आई वाज व्हाट 21 at that point of time. Her father got transferred to Hyderabad, so she moved to Hyderabad because she was pursuing her graduation at that point of time. You followed a girl, bro? Yes. Okay. So I could not go and meet her in Hyderabad because Hyderabad was very very far from Delhi. And बहुत difficult था. उसमें पैसे भी नहीं होते थे कि आप फ्लाइट के टिकट लो. ट्रेन्स बहुत डिफिकल्ट थे. उतनी लंबी छुट्टियाँ भी नहीं बिकॉज ट्रेन आने में 1-1.5 दिन लग जाते थे. तो आपको आने जाने में 3 दिन लग जाएंगे. फिर आप मिलोगे कब क्या होगा. तो मैं आ नहीं पा रहा था. तो मैंने कहा यार कि मतलब I don't know was it I read about Irfan Khan. उसने एक मूवी में बड़ा अच्छा डायलॉग बोला था कि life is random. Life is random. Life is random. There is nothing that you can do to control anything. Like you being here, I'm being here, Nayana Tare being here, this camera being here, this coffee cup being here. We cannot control anything. But as when you move forward in your life and imagine if your life is a picture and if you try to solve those puzzles in your picture, at the end everything will make sense. And then you will realize that whatever you did, you made a right choice. So I think when I look back, अभी 20 साल पहले कि मतलब मैंने क्या किया था, now it makes sense. So I followed her and I was in madly and deeply love with her. What was her name, if you don't mind? I think that would be okay. Let's leave it out. I will let's just call her Varanasi. Yeah, let's just call it a Varanasi. 100%. Yeah. Okay. Right now I'm happily married. I love my wife. Everything is beautiful. But those were the days when you moved things without even thinking, without even blinking. तो जब लड़की का पीछा करते करते आए हैदराबाद, फिर क्या हुआ? यहाँ आया and then it was a very different world for me. I was young. She helped me a lot. What was she doing here? She was pursuing her graduation. Okay. Yeah, she was pursuing her graduation. She helped me a lot. I called her and she was also वो निब्बा निब्बी वाला जो प्यार होता है ना. Correct. तो वो भी she was also like आ जाओ. तो मैं आ गया यहाँ पे without even thinking. I was working there. सब कुछ छोड़ छाड़ के. कॉफी डे में बरिस्ता का जॉब छोड़ के आ गए हैदराबाद. मेरे जेब में 2,000 रुपए थे. I just had 2,000 rupees in my pocket. 4th of June 2008. With 2,000 bucks in your pocket, you came to Hyderabad. Yeah. And then she helped me to find a PG. So there was a PG in Lotkunta. Lotkunta, okay. I still remember. That's where I first came. And it was a PG of 5, one room. 5 लड़के रहते थे हम लोग. 4 people were from the deep villages from some very interior villages guys. Okay. And I was also though I only lived for 1 year in Delhi, but I was also from a very deep village. So I could not speak English back then. मेरे को English बोलनी नहीं आती थी. And I only spoke Hindi and they only spoke Telugu. They could not speak Hindi. So बहुत कम्युनिकेशन गैप था. साइन लैंग्वेज. हाँ. एंड मतलब एंड ये होता है रैंडमली. जैसे अगर आप नोटिस करना कभी, जैसे अगर आप इफ़ यू नॉट मैच्योर इनफ, इफ़ यू आर किड एंड स्टूपिड एंड इफ़ यू सिटिंग समवेयर, आपके आसपास जो 4 लोग बैठे हैं वो आपकी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं और आपको उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, तो आप और वो हंसेंगे तो आपको लगेगा वो आपके ऊपर. वेरी कॉमन. तो मेरे साथ ऐसा बहुत होता था. वो अपने आप में So बहुत it was very difficult time I guess. मतलब but eventually I realized now when I look back that was also an experience. Again, life is random. And that helps me here in Roastery. So in Roastery we have a bunch of people working from different part of India. Like people are from Andhra, Telangana, West Bengal, Bihar, Odisha, Delhi. So now can you speak Telugu also? Kuncham. Okay. And I can understand.
completely. So now you know if they're laughing at you or not. Yeah, yeah. No, not that. I mean, this helps me here, to settle down my boys because, when I look at them, they are also 20, 21, and if there's a party happening or some kind of gathering happening, and सब लोग बैठ कर चिल कर रहे हैं और उसमें एक लड़का बैठा है जिसको दूसरी लैंग्वेज नहीं आती है और वो 5 लड़के बैठ के हंस रहे हैं, तो उसको ऐसा लगता है वो लेफ्ट आउट है, तो मैं उसकी फीलिंग को समझ पाता हूँ। और कई बार क्या होता है कि वो गुस्सा भी हो जाते हैं, दे गेट एंग्री बिकॉज उनको लगता है यार मुझे मेरी इंसल्ट हो रही है, तो फिर मैं उनको समझा पाता हूँ कि नहीं वो तुम्हारे ऊपर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं now है। we are wise, we've lived through that phase. So as you said, experience. So what happened after that Lotkunda PG? मैन वहाँ पे आया, मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि जॉब तो मिल जाएगी, ठीक है, बिकॉज कमा लेंगे कुछ तो करेंगे। Were you looking for jobs as a barista only? I was open. I was open to work. So then where did you work after? So I came here first तो 1 साल से नहीं मिले थे, तो बहुत सारा 6-8 महीने से नहीं मिले। प्यार बांटा। हाँ, तो पहले तो वो बहुत सारा प्यार बांटा। बहुत फन मारा 10-15 दिन, थोड़े जो मतलब 2000 रुपये बहुत होते थे उस टाइम पे। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं आया था तो उसका बर्थडे था और उसका केक काटने के लिए हम लोग गए थे टैंक बंड के सामने जो पार्क है, उस पार्क के ऊपर बैठ के। Back then cutting cakes at Tank Bund was not a trend, by the way. Now it has become a bit हाँ, तो हम लोग वो सब करते थे एंड सो पहले तो वो सब किया, ठीक है, जो फन मारना होता है, एंड देन फिर आई गॉट सीरियस, पैसे खत्म हो गए, अब तो पैसे खत्म हो गए, अब तो फन हो गया, खत्म हो गया, अब काम करना पड़ेगा। तो एंड आई कम फ्रॉम वेरी वेरी लो मिडिल क्लास बैकग्राउंड, वेरी वेरी लो, लाइक ऑलमोस्ट पॉवर्टी लेवल और लो मिडिल क्लास बैकग्राउंड के बीच में जो। कितने भाई बहन थे आप लोग? 4, सबसे बड़ा मैं। पापा क्या करते थे? हॉस्पिटैलिटी में थे, ही वाज वर्किंग इन सम कैपेसिटी विद समबडी एंड मतलब हैंड टू माउथ, और 4 भाई बहन थे। You were the eldest? I was the eldest, 3 छोटे थे, तो उस टाइम पे लगता था शिट आई मेड अ मिस्टेक, आई शुड नॉट हैव डन दैट, मतलब व्हेन थिंग्स वेंट रॉन्ग तो रैंडमली डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, बट देन सी वेयर यू आर मैन, बिकॉज़ यू फॉलोड अ गर्ल टू Hyderabad. अगर नहीं करता, women has played a lot of role, very important role in my In your life. life? Yeah, right now my wife, she is like she is the driving force. She's your anchor. She's my anchor. She keeps you grounded. 100%. तो पहला जॉब क्या मिला? फिर बहुत सारे रेज्यूमे प्रिंट कराए, लेके गए हर जगह। रेज्यूमे प्रिंट करा के आप लेके जाते थे फोल्डर में डाल के, मेक श्योर कि फोल्डर अच्छा हो, अंदर कम बनाओ पेपर, वो टाइम थोड़ा अलग था। सो आई वेंट टू लॉट ऑफ प्लेसेस टू वर्क एंड टू अप्लाई फॉर अ जॉब। 5-6 जगह अप्लाई करने के बाद आई गॉट अ जॉब इन पैंटालून्स बेगमपेट फ्यूचर ग्रुप। The biggest Pantaloons अभी बंद हुआ है recently, बहुत साल तक था। That was the second Pantaloon in India, the second one. Okay. Yeah, I started from Hyderabad, Calcutta, and the second Pantaloons was in Hyderabad. So वहाँ Pantaloons में नौकरी Pantaloons में जॉब मिल गई, and जो HR मैनेजर थी उन्होंने कहा कि आप आ जाओ कल से। मैंने कहा मैम ऑफर लेटर, क्या डोंट वरी, हम 1 हफ्ते में इशू कर देंगे, आप आ जाओ। मैंने कहा ओके, तो मैं चला गया। 5-6 दिनों के बाद क्या हुआ कि पता नहीं कोई उनका साउथ का हेड आया वहाँ पे। अच्छा। साउथ का हेड, उसने मुझे ऑब्जर्व किया फ्लोर पे, पता नहीं उसको मैं समझ में नहीं आया, शायद ही डिडंट लाइक मी और मे बी फॉर सम रीजन एंड हम छोटे लोग थे यार, हम पूछ भी नहीं सकते थे कि आपने मुझे क्यों नहीं पसंद किया, एंड उतनी हिम्मत भी नहीं होती थी, वी डिडंट हैव दैट बैक देन। तो नेक्स्ट डे एचआर ने का कॉल आया और उसने बोला कि निशांत आप मुझसे आके एचआर ऑफिस में मिलो। मैं गया, मिला, उन्होंने बोला यार कि सॉरी मैं आपको ऑफर नहीं कर सकती हूँ, आवर साउथ हेड डिडंट लाइक यू। Just like that. Our South head did not like Did you. not like. काम के बारे में कुछ नहीं बोला, कोई नहीं, कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं, फ्लैट ऐसे ही बोल दिया। What the fuck man? हाँ, फिर कुछ नहीं बोल सकते आप, और उतना हमारे पास we didn't have guts यार बैक देन। अभी कोई पूछे कुछ बोले तो I think still हम पूछ सकते हैं। हाँ पूछ सकते हैं, उस टाइम पे गट्स नहीं था, तो हमने कहा ओके मैम। मैंने कहा मैम 7 दिन का पैसा तो दे दो। मुझे लगा यार 7 दिन का पैसा मिल जाएगा, वही बहुत है, पीजी का किराया भरना है, कुछ तो निकल जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं दे दूँगी। उस टाइम तो एचआर का होता है ना सिस्टम की बस निकालो इनको यहाँ से, तो वो निकल गए। फिर पता नहीं दैट एक्चुअली फक माई माइंड बहुत ज़्यादा, एंड देन उस यार डिप्रेशन वर्ड तो समझ में नहीं आता, बट उस टाइम लो थे, वेरी लो। हाँ हाँ, तो डिप्रेस होने का तो अपने पास अपॉर्चुनिटी भी चांस भी नहीं कि मैं डिप्रेस हो सकता हूँ। हाँ मतलब खाना यार, तो चांस ही नहीं था कि मैं आज फिर अगले दिन से बहुत मेहनत करनी स्टार्ट की, कुछ नहीं मिला, बिकॉज कॉन्फिडेंस ब्रेक हो गया। ओके। हाँ कि आपने 7 दिन का ही काम किया है, एंड उसके बाद आपके साथ ऐसा हो गया, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ। बट उस 7 दिन के अंदर ना 1 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था। दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम हैज़ हेल्प मी अ लॉट। क्या था वो ट्रेनिंग प्रोग्राम? पता नहीं उनका कोई बहुत सीनियर लेवल का बंदा है। हाँ, तो उसमें उन्होंने एक वो किया था, एक टास्क हमको दिया था,
और टास्क उन्होंने देखिए ये बताया था कि आप जैसे उन्होंने हमें कुछ पिच दिया था और बोला था कि हमें कन्विंस करो ये खरीदने के लिए। तो हमने वो पिच विच बनाया, मैंने भी बहुत सारा पिच बनाया, बहुत सारे लोग थे उन्होंने पिच विच बनाया, सब ने पिच दिया, किसी का कन्विंस हुआ किसी का नहीं हुआ। तो जो ट्रेनर था ना उसने सबको बताया कि हाँ इसका अच्छा हो गया, इसका हो गया, इसने खरीद लिया, इसने नहीं खरीदा। उसने फिर मुझे बोला यार देखो तेरा पिच अच्छा था बट तूने गलत आदमी को पिच मारा। तो कोई भी पिच खराब नहीं होती है, कोई भी चीज़ खराब नहीं होती है, Just- उसका प्लेसमेंट गलत होता है। राइट, रॉन्ग टाइम, रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग पीपल। हाँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मतलब अगर कभी कुछ खराब हो जाए तो ये मत सोचना कि आप खराब हो, प्लेसमेंट आपका गलत है। या टाइमिंग गलत है। हाँ, टाइमिंग गलत, आप कहीं और लेके जाओ शायद वो काम कर जाए। तो वो मैंने वहाँ पे सीखा, वो एक दिन की ट्रेनिंग थी। पता नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो पिक्चर है आपकी, उस पजल में आप सॉल्व करते करते कहीं ना कहीं परफेक्ट पिक्चर बनती है बाद में जाके। तो वो सब बट व्हेन इट्स इन द मेकिंग यू डोंट रियलाइज हाँ, लाइक व्हाट द फक इज उस गोइंग टाइम तो बहुत गुस्सा आता है यार, बड़ा गुस्सा आता है। मतलब हम लोगों के साथ तो कई बार हुआ है ये सारी चीज़ें। तो किसी को ये है कि किसी की पजल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है, किसी की टाइम लगती है, डेकेड लग जाती है 20 साल 25 साल लग जाते हैं। करेक्ट। आप शाहरुख खान को देखो, शाहरुख खान बिकेम ए लवर बॉय आफ्टर 30। करेक्ट सो बोमिन ईरानी गॉट सक्सेस आफ्टर 45। करेक्ट। तो मतलब सबके अपना पजल वो सॉल्व, Everybody has their own timeline. हाँ, Everybody's time puzzle लगता gets solved. Solved. Eventually it does get Eventually solved, it does but it get takes time. solved. It Everybody. takes time. Okay. फिर बहुत ज़्यादा मैं लो फील कर रहा था। आई वॉज फीलिंग बैड बहुत, मतलब महीने भर ट्राई किया, कहीं कुछ नहीं मिला। बिकॉज आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट। जब भी मैं इंटरव्यू में बैठता तो मुझे वही ट्रॉमा हिट करता था, इस शिट यार मेरे साथ तो ऐसा हो गया, यहाँ भी ऐसा ना हो जाए। तो आई वॉज नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट। तो इन चक्करों में चीज़ें बहुत ख़राब हुई। फाइनली आई रैन आउट ऑफ मनी। अब जो फ्रेंड्स थे उनसे थोड़े थोड़े पैसे लिए, वो चलाया। माई गर्लफ्रेंड रियली हेल्प मी, शी यूज टू गिव मी सम मनी, अपने पॉकेट मनी से मुझे पैसे देती थी ताकि मैं कुछ खा पी सकूँ, इन्जॉय कर सकूँ। तो वो सब बहुत हुआ। महीने भर बाद आई वॉज कम्प्लीटली ब्रोक। और मैं मांगूँ भी किससे, कितना पैसा मांगूँ, क्या करूँ, मतलब घर वाले से तो मांग ही नहीं सकता, कि चांस ही नहीं था। देन ऑलमोस्ट 1.5 days 2 days तक मैंने खाना नहीं खाया था। भूख लग रही थी बहुत तेज, और पीजी में केवल रहने का था, खाने का नहीं था। खाना अपनी जेब से ही खाना आपको बाहर जाके खाना था, खाना वहाँ पर नहीं था। तो और मैं कुछ खाया नहीं था, मैं क्या करता, और मांग मांग के शर्म आ रही थी। तो मैंने कहा चल वॉक करते हैं, देखते हैं। मैं वॉक लोटकुंटा से बाहर निकला, वहाँ पे एक थिएटर है, नर्तकी थिएटर। नर्तकी थिएटर स्टिल देयर मैन। नर्तकी टिफिन्स, हाँ, उसके पीछे नर्तकी हाँ, थिएटर। थिएटर। तो मैं उसको क्रॉस करके थोड़ा सा आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मोर सुपर मार्केट है वहाँ पे, अगर आपको याद हो तो। हाँ, मोर सुपर मार्केट को मैं जब क्रॉस कर रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ पे बड़ा सा ट्रॉली आके लगा हुआ है। कुछ वीकेंड था, सैटरडे संडे, और मोर सुपर मार्केट पैक था, फुल रश भरा हुआ था। और कुछ लड़के वहाँ पे ना स्ट्रगल कर रहे थे सामान उतारने में, और जो उनका ट्रॉली वाला था वो भी गुस्सा हो रहा था, जल्दी उतारो, और बहुत भसड़ थी वहाँ पे। तो मुझे लगा यार कि यहाँ पे ना कुछ बन सकता है, खाना तो मिल ही जाएगा, सुपर मार्केट है, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। तो वहाँ पे जो बंदा था, जो सीनियर बंदा, मैं उसके पास गया, मैंने कहा सर आपको मैं हेल्प करता हूँ उतारने के लिए, बट मुझे कुछ खाने के लिए दे देना। मैंने खाने के लिए बोला, मुझे पैसे दे देना। तो उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसने कहा कि यार पता नहीं कौन सा बंदा ऐसे बोल रहा है, बट उसको ज़रूरत थी उस You टाइम। just randomly went in, you हाँ। said, I'll help you with the stuff. हाँ हाँ, Just give me enough money. जस्ट रैंडम। हाँ, मुझे खाने के लिए दे देना हाँ, बस। बट मैं बहुत डेस्परेट था, बहुत डेस्परेट। तो उसने, उसको भी ज़रूरत थी, उसने कहा आजा भाई तू। तो मैं चला गया, उससे सामान उतरवाया। मतलब मैंने उसको थोड़े आटे की बोरी वोरी सब होती है ना, चावल सुपर मार्केट में तो वही आता है, कार्टन वाटन सब थे, सब उतरवाया। और आधा घंटा हुआ, उसके बाद उतारने के बाद सब ठीक था। उसने मुझे देखा ऐसे, मैंने उसको बोला सर थोड़े पैसे दे देना इसके। तो उसने मुझे बोला 2 मिनट रुक। तो फिर वो बेचारा अंदर गया, मतलब 2 मिनट का आधा घंटा 1 घंटा और हो गया। उसने मुझे पानी का बॉटल तो दिया, मैं पानी नहीं पिया। उसने पूरा स्टोर जो भी भीड़ थी उसको ख़त्म किया। एंड फिर उसने मुझे बैक ऑफिस में बुलाया। उसने बोला क्या स्टोरी है तेरी, तू क्या कर रहा है यहाँ पर? तो मैंने बोला कि सर मैंने बताया कि यार मैं मतलब यहाँ पे जॉब ढूंढ रहा हूँ, जॉब ऐसे नहीं आया लग था, रही। अभी पैसे खत्म हो हाँ, गए। जॉब ढूंढ रहा हूँ, जॉब नहीं है, पैसे ख़त्म हो गए। तो मुझे भूख लग रही थी, तो मैं निकला बाहर, और मुझे लगा कुछ शायद सड़क पे कुछ हो जाए। तो आप दिख गए, ऐसे चल रहा था, तो मुझे कुछ खाने मतलब पैसे दे दो। कह रहा देख पैसे तो मैं नहीं दे सकता हूँ। तो मैंने कहा आप क्या दे सकते हो? कह रहा है कि मैं ना तेरे को कुछ खाने के लिए दे सकता हूँ। तो मैंने कहा दे दो सर आप खाने के लिए। तो कह रहा क्या खाएगा? मैंने कहा सर केला है, Something filling. हाँ, ब्रेड है और आलू भुजिया है। केला, ब्रेड एंड आलू भुजिया, perfect sandwich. परफेक्ट सैंडविच। मैंने कहा आप वो दे दो। तो उसने कहा कि पहले वो देखो, उसने बोला मैं चावल दाल मांगूंगा। मैंने कहा खबर पकाऊंगा कहाँ मैं? मैंने कहा अभी भूख लग रही है यार। तो उसने फटाफट ला के दिया मुझे, मैंने बोला टक 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 बनाया और खूब सारा खा लिया। खाने के बाद पानी वानी पिया, वो मुझे देख रहा था, ठीक है। उसके बाद फिर उसने पूछा क्या स्टोरी, क्या मैं स्टोरी बताई उसको। उसने कहा कि यार आप एक काम करो, आई विल सेंड यू द रिकमेंडेशन। तो उसने अपने HR का नंबर दिया। उस टाइम LB नगर में उनके HR
हेड ऑफिस बैठता था। तो उन्होंने HR का नंबर दिया, मैं अगले दिन इंटरव्यू के लिए गया, सिलेक्ट किया। उसी स्टोर में मैं असिस्टेंट मैनेजर बन के आया। उसी स्टोर में असिस्टेंट मैनेजर बन के आया। Wow, man. हाँ। That day, if you've not gone for a walk in that direction हाँ, or some नहीं। other fucking direction, your story would have been completely डिफरेंट। हाँ। फिर वहाँ पे 3-4 महीने काम किए, 10,000 रुपये सैलरी मिल रही थी, लाइफ वॉज गुड, ठीक है। 2008 की बात है, 10,000 रुपये सैलरी मिल रही थी। 5 से 10 को तो जंप किया। जंप किया, हाँ। मतलब थोड़ा गैप आया, बट जंप Jump कर तो गया। किया, हाँ, कर गया। फिर बट आई थिंक कॉफ़ी इज़ समथिंग ना दैट हैज़ ऑलवेज पुल्ड मी। मतलब कई बार मैंने कॉफ़ी को छोड़ने की कोशिश की, मतलब अननोइंगली। घर पे भी पीते थे बिहार में? नहीं, कभी नहीं। माई फर्स्ट दिल्ली एक्सपीरियंस आके शुरू की? हाँ, CCD में जब पहला ज्वाइन किया जॉब, तो वहीं पे आई ड्रैंक एस्प्रेसो। ओके। हाँ, फर्स्ट टाइम। फिर? फिर 4-5 महीने वहाँ काम किए। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड लवाजा, इट्स अ इटालियन कॉफी। Lavazza, yes, man. वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉफी कंपनी इन द वर्ल्ड। 2007 में दे एंटर्ड इंडिया, करेक्ट। एंड वो दे वर लुकिंग फॉर पीपल। सो उनकी स्ट्रैटेजी बहुत अलग थी। दे वांटेड टू हायर पीपल इन सेल्स फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड, राइट। somebody who has a coffee background and somebody who also has a hospitality background. Dots kept connecting. I don't know how. Hmm. So naukri.com पे प्रोफाइल तो उस समय चलती थी, तो अपलोडेड थी। मेरे को वहाँ से कॉल आया कि आप इंटरेस्टेड हो इंटरव्यू के लिए। मैंने कहा बिल्कुल। तो बिकॉज आप बच्चे हो यार, आपको पैकेज था उस टाइम वहाँ पे 16,000 रुपये का। 16,000 रुपये यार सॉलिड। मैं घर भी 7-8 5 से 10, 10 से 16। जब 5,000 कमा रहा था, तो हम लोग ना बहुत नॉर्मल मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और हमारे यहाँ एक रिचुअल है, आप कितना भी कमाओ, आप थोड़ा पैसा अपने घर भेजोगे। तो जब मैं 5,000 कमाता तो मैं 1,000 रुपये घर भेजता था। अभी भी भेजते? अभी भी। अब तो मतलब घर वाले साथ में रहते हैं, वही पैसा संभालते हैं, तो अब मैं उनसे लेता हूँ। तो अब स्टोरी थोड़ी उल्टी हो गई है। बट जब 10,000 रुपये थे, तो अब मैं 3,000 रुपये बेचता था। 5,000 थे तो 1,000 बेचता। मैंने कहा 16,000 मिलेंगे यार, मैं 10,000 भी कमाओ, अगर 1,000 भी कमा रहे हो तो थोड़े उसमें से घर हाँ, भेजने हैं। 200 रुपये तो भेजना चाहिए आपको। ओके। हाँ, वो मतलब आई थिंक ritual अभी भी है। हाँ, इंडियन रूट्स में तो है। आई थिंक सारे इंडियन रूट्स में। Correct. सबके घरों के साथ है, सब बच्चों के साथ है। तो मैं 16,000 रुपये नौकरी मिल जाएगी यार, सॉलिड। मतलब इससे बेटर क्या चाहिए लाइफ में आपको। 16,000 में 8-9,000 में घर भेज दूंगा यार, मतलब मज़ा है। घर वाले भी आराम से रहेंगे, मैं भी आराम से रहूँगा। तो अप्लाई किया, गया वहाँ पे, जॉब इंटरव्यू दिया, सेलेक्ट हो गया। रवि दासिका करके मेरे बॉस थे वहाँ पे। रवि दासिका? हाँ, रवि दासिका। उन्होंने वो ही चेंज माई लाइफ। मतलब हम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। 1.5 साल में मैंने लवाजा में काम किया। आई वॉज अ टॉप परफॉर्मर अक्रॉस इंडिया, जो डील्स में स्ट्राइक करता था, बिकॉज आई हैड अ कॉफ़ी नॉलेज, आई हैड अ कॉफ़ी बैकग्राउंड एंड अ हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड। सो दैट रियली हेल्प मी, दैट बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस अ लॉट। लवाजा बहुत कॉन्फिडेंस उसने बूस्ट किया। मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे अंदर भी कुछ है, आई कैन डू समथिंग। वाह। हाँ, एंड देन द पीपल दैट आई मेट, इट्स ऑलवेज एज आई सेड, मे बी आई डिडंट हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉफ़ी, बट जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी और जहाँ मैं उस टाइम प्लेस था, जिस जगह पे, उन लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो बोलते ना अंधों में काना राजा। करेक्ट। तो आई बिकेम दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। मतलब आई वॉज You had more information than the I had people more you were information than surrounded by. anybody else around me. Hmm. And I was at the right time, at the right place. जो कस्टमर्स भी मुझे मिलते थे, सो बेसिकली लवाजा की कॉफ़ी मशीन्स होती हैं, कॉफ़ी बीन्स होती हैं। आप Correct. कस्टमर्स आते हैं खरीदने के लिए, बिकॉज अगर आपको किसी कॉफ़ी शॉप खोलना है, तो उस टाइम पे लवाजा वॉज दी ओनली चॉइस। आप उनके पास जाओ। Also, Coffee Day used to sell beans, no? लवाजा वॉज प्रीमियम। Okay. Coffee shop had this amalgamated coffee beans private limited. हाँ हाँ, कॉफ़ी डे यूज्ड टू सेल मोर इन कॉर्पोरेट। Okay. या कॉफ़ी शॉप में मतलब उनका बेकरी वेकरी के अंदर मशीन्स लगती थी। लवाजा वॉज प्रीमियम, लाइक Lavazza was premium, हाँ okay. हाँ, यू वांट ओपन अ नाइस प्रीमियम कैफे, सो यू गो टू लवाजा उस टाइम पे। सो जो कस्टमर्स भी मुझे मिलते थे, उनको कॉफ़ी शॉप खोलना है, बट उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था। मेरे पास CCD की पूरी नॉलेज थी, रेसिपीज़ थी। How to operate a हाँ cafe. हाँ, फॉरगेट अबाउट ऑपरेटिंग, लाइक रेसिपीज भी किसी को नहीं पता होते थे। Correct. और मैं थोड़ा सा भी रेसिपी बनाता था, लोग कहते थे वाओ दिस अमेजिंग। तो ऐसा नहीं था कि आई वाज द बेस्ट, इट्स जस्ट दैट जो मेरे आसपास जो लोग थे उनसे बेटर था शायद मैं। तो बहुत अच्छा काम किया। उसी टाइम पे आई मेट अ जेंटलमैन, दैट्स वेयर वी आल्सो मेट, मिस्टर वरुण शर्मा, कॉफी कप के कॉफी ओनर। कप के ओनर वरुण। सो मैं उनसे लवाजा में मिला था। आई मेट हिम इन लवाजा, एंड मैं वरुण के बारे में बताता हूँ आपको कि वरुण ने कैसे लाइफ मेरी चेंज की। बट लवाजा में उनसे मिला, ही वांटेड टू ओपन अ कॉफ़ी शॉप, एंड उन्होंने फिर हमारी थोड़ी फ्रेंडशिप भी हो गई। ही स्टार्टेड ट्रीटिंग मी लाइक अ यंगर ब्रदर। उन्होंने मुझे बहुत ध्यान रखा।
मतलब जब जाते थे तो थोड़ा इट वाज नॉट जस्ट अ कस्टमर एंड क्लाइंट रिलेशनशिप और वेंडर रिलेशनशिप, इट वाज मोर देन दैट। तो मैंने उनको थोड़ा सा रेसिपी में हेल्प किया, ये सारी चीज़ थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने उनके लिए किया। तो ये रियली अप्रिशिएट एंड ही ऑलवेज सेड कि निशान तुमको अभी कभी भी कुछ करना होगा तो बताना मुझे। मैंने कहा ठीक है, बच्चे थे यार, मैंने कहा यार कहाँ अभी मतलब अच्छी नौकरी मिल रही है, 16,000 सैलरी थी, मैं इंसेंटिव कमा रहा था 10,000 रुपये उस टाइम पे, 16,000 के ऊपर। घर वाले भी खुश, घर लड़का यार तो चीता निकल गए, ठीक है, और मैं भी खुश, मैं कहा मजे आ रहे लाइफ में। फिर मेरे को अभी ये सब जब हो रहा था वाराणसी कहाँ थी? वो चली गई। वाराणसी चली गई, जिंदगी से आउट हो गई। वाराणसी से चली गई, चलो ठीक है। तो वो शी वेंट टू, मे बी शी वाज नॉट सपोज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ योर, आई थिंक उसका वो रोल था, उतना ही रोल था। शी गॉट मी देयर एंड देन शी मूव्ड इन लव विद समबडी एल्स एंड देन शी पार्टेड वेज विद मी। मैं बहुत रोया, मैंने 5 साल तक शोक मनाया इस बात का। हाँ, 5 5 साल तक। उसके बाद मुझे मतलब किसी कोई बड़ा बुजुर्ग मिला और उसने मुझे बोला कि सफरिंग इज पर्सनल। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत सही बात बोल गया यार, पहले निकल जाना चाहिए था। एंड सो वहाँ के बाद लवाजा के बाद मेरे को हिंदुस्तान यूनिलीवर से कॉल आया। ओके। एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर इज़ लाइक सबका ड्रीम जॉब है, मतलब जो आप सेल्स वेल्स में हो या फिर इट्स अ वेल ह्यूज। एंड जो मिस वाराणसी थी उन्होंने मुझे जब आपका ब्रेकअप होता है ना, आप एक दूसरे को बहुत नास्टी चीज़ें बोलते हैं यार, मतलब अब आप सोचो तो हंसी आएगी, बट उस टाइम पे आप एक दूसरे को बहुत नास्टी चीज़ें बोलते हो, सॉलिड नास्टी चीज़ें। तो उसने कुछ नास्टी चीज़ें बोली, जिसमें वन ऑफ द लाइन्स वर कि तुम्हारा फ्यूचर क्या है। अच्छा। हाँ, तुम तो ग्रेजुएट हो, मैं मास्टर्स करने जा रही हूँ। तो मुझे थोड़ा सा ना दिल पे लगा था बहुत ज़्यादा। अभी कभी हिंदुस्तान वरुण से मैं दोबारा कैसे मिला वो बहुत इंटरेस्टिंग है समझ में। हिंदुस्तान यूनिलीवर हुआ, मैं गया, 6 महीने मैंने काम किया, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। दिस इज़ लाइक मतलब रोबोटिक जॉब, कुछ करना ही नहीं, सब कुछ सेट है। और बहुत वास्ट यूनिवर्स था। हाँ, पता नहीं, जस्ट लाइक वन टाइनी, वो भी नहीं थे, कहाँ थे पता नहीं चल रहा था। मैंने 6 महीने में क्विट कर दिया। व्हेन आई क्विट, उस हमारे डिवीजन के जो एमडी थे, ही केम टू टुक माय एग्जिट इंटरव्यू कि बेटा कहाँ जा रहे हो, क्या 6 महीने में तो लोगों को समझ में नहीं आता कि तुम क्या। मैंने कहा सर बहुत समझ गया, मैं नहीं करना है। मैं निकला वहाँ से। फिर मैंने मेट्रो कैश एंड कैरी करके एक जर्मन होलसेलर है, करेक्ट। हाँ, उन्होंने मेट्रो कैश एंड कैरी, इट वाज अ रेज व्हेन इट केम। हाँ हाँ। सो आई जॉइन देम, उनका ऊपर में स्टोर था, तो आई जॉइन देयर। वहाँ पे मैंने 1-1.5 साल काम किया। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, नॉट एवरीबडी नोज अबाउट इट, ठीक है, कोई नहीं जानता इस बात को। एंड आई होप मतलब कि पीपल डोंट टेक दिस Fuck it, man, just say it. इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। हुआ क्या कि माय यंगर ब्रदर, ठीक है, he was 22, 23 at that point of time, and he was studying engineering in Indore, because I was doing well. HUL में 50,000 रुपये सैलरी मिलती थी मुझे, मज़ेदार लाइफ। You were able to sponsor his education. लाइफ बहुत अच्छी हुई, ठीक है, मतलब he gone through a kidney failure. Okay. Prashant, my brother, Yes. now he is the co-founder of Roastery, we work together. So उसका kidney failure हो गया, he gone through a kidney failure, and हमारे पास पैसे नहीं थे, और हम लोग का इंश्योरेंस नहीं होता था हमारे पास उस टाइम पे। गाँव में कोई इंश्योरेंस नहीं कराता, नहीं। सब कोई कराते हैं, इन्फॉर्मेशन होता है, मेडिकल इंश्योरेंस होता है ये पता भी नहीं था उस टाइम पे यार। तो हमारे पास कुछ नहीं था, एंड ही इज गॉन थ्रू द किडनी ट्रांसप्लांट, मतलब किडनी फेल हो गया, एंड माय एंटायर फैमिली वाज इन पैनिक कि हम क्या करें। तो मैंने कहा यार, पता किया, लोगों से बात की, तो पता चला हैदराबाद में काफ़ी अच्छा मेडिकल सर्विसेज हैं। तो अब पता नहीं यार, आप वही सोचो कि इफ़ यू कनेक्ट द डॉट, आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स। सो आई गॉट माई फैमिली, आई गॉट हिम हेयर, ठीक है, आई वॉज डूइंग लिटिल डिसेंट, तो हम लोग साथ में रहे, वी वेंट टू अपोलो टू गेट द चेकअप डन एंड ऑल। एंड मुझे आई हैड टू गो ऑन अ बेड रेस्ट, बिकॉज मेरे फादर ने पहले, उनका मैच हुआ कि ही वुड गिव द किडनी, बट फिर उनको डायबिटिक निकल गया। करेक्ट। और मेरी दोनों बहनें और मम्मी का नहीं मैच किया, एक छोटी बहन का मैच किया, बट वी वर नॉट इन अ फेवर। फिर उसके बाद आपका मैच, तो मेरा मैच किया, एंड यू हैड टू गिव लाइक अ, तो आई गेव द किडनी। तो आई एम वन ऑफ दोज probably few people in the world who is live kidney donor. So I'm living, I'm alive, as well as I'm the donor. I'm donating my kidney. Wow. तो ये हुआ, उसके बाद I had to go for a bed rest For how long? for almost a month, more than a month.
How does it feel, man? Like, do like a lot of changes happen in the body when you're living on one kidney? I think it changed my life completely. Completely. Because you gave up drinking after that and all of that? No. I didn't give up. I still smoke. I still drink. I eat everything. I have not given up anything. क्या होता है यार एक किडनी? I think as a person it changed me. मैंने I asked for a leave from the organization and उन्होंने मना कर दिया. बिकॉज उनको लगा यार ये तो किडनी दे रहा है, ये जिंदा बचेगा कि मरेगा कौन जानता है. अच्छा हुआ उसके पहले क्या हुआ, मेरा वरुण से कनेक्शन कट गया था. अच्छा. I had no After you connection. helped him? हाँ मतलब जब उन्होंने कॉफ़ी कप खोला, मतलब नॉट हेल्प, ही वॉज बाइंग मशीन्स फ्रॉम मी, बट हाँ वी वर वर्किंग टुगेदर एंड हाँ कह सकते हो उन्होंने मुझे हेल्प किया, मैंने उनको किया. तो मेरा दोस्त जब मैं HUL में 6 महीने तक था, मेट्रो में 1.5 साल था, 2 साल तक हमारा कोई कनेक्शन नहीं था. हाँ वो भी अपने मतलब हम कोई बात भी नहीं करते, कभी मिले भी नहीं. जिस दिन मेरे साथ ये हुआ ना, उसके 1 हफ्ते पहले वो मेट्रो आए थे कुछ सामान खरीदने. वो नहीं आए थे, उनकी सिस्टर इन लॉ आई थी. करेक्ट. सामान खरीदने. शी इज़ ऑल्सो ए डॉक्टर. तो जब वो सामान खरीदने आई थी मेट्रो में, तो उन्होंने मुझे देखा, मैंने भी देखा. ठीक है, तो हम मिले, फिर उन्होंने मेरा नंबर लिया, बिकॉज उस टाइम नंबर चेंज हो जाते थे. Correct. अभी वाला सिस्टम नहीं कि पोर्ट हो जाता है, उस टाइम नंबर चेंज होते थे आपके. अगर आप कंपनी शिफ्ट करें करेक्ट. तो आपके नंबर चेंज, सर्विस चेंज किया तो नंबर चेंज. कंपनी चेंज की तो नंबर चेंज, शहर चेंज किया तो नंबर चेंज, लोग कर देते थे. बहुत ईजी था. तो उन्होंने मेरा नंबर दिया, उन्होंने वरुण के दिया. वरुण का मेरे पास कॉल आया 1 हफ्ते पहले ऑफ द एंटायर किडनी एपिसोड. मतलब बिफोर आई गॉट टू नो दैट माई ब्रदर किडनी इज गॉन, उसके ठीक 1 हफ्ते पहले दिस हैपेंड. देन ही कॉल्ड मी, इज लाइक निशान, मैं आता हूँ तुमसे मिलने. ही केम, ही मेट मी इन मेट्रो. उन्होंने कुछ सामान खरीदा, फिर उन्होंने कहा तुम आओ मुझसे मिलने. तो मैं गया हूँ कॉफ़ी कप, और मुझे भी था जाने का, तो मैं कॉफ़ी कप गया, उनसे मिला. फिर उन्होंने कहा यार निशान चल नहीं रहा है ठीक ठाक, और आई माइट सेल इट आउट. ठीक है, कॉफी कप. हाँ What the fuck? ही इज़ अमेजिंग गाय, बट ही यूज्ड टू वर्क इन अ मर्चेंट नेवी. सो 8 महीने ही वॉज सीलिंग एंड ओनली 4 months ही वॉज देयर. अच्छा, तो कौन चला रहा था फिर? मतलब उन्होंने लोग, मतलब बच्चे Managers वगैरह. बट वो दे वर नॉट गुड इनफ. वो अपनी तरीके से ट्रीट कर रहे थे, मतलब वो खा पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे. कैफे नहीं चल रहा था ढंग से. Correct. आई हैड इट बीन लाइक, अगर वो यहाँ 12 महीने होते, वो बहुत अच्छा चलाते. बट हिज जॉब वॉज सो फकिंग गुड दैट उस टाइम में मर्चेंट नेवी And that was the job that was able to fund the coffee shop. फंड द कॉफी शॉप 100%. तो उनके लिए वहाँ रहना बहुत ज़रूरी था. ये उनका लगा दिया कि चलो ठीक है चल जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट फाइंड द राइट गाइस टू वर्क. तो उन्होंने बोला मैं बेचना चाहता हूँ, इफ़ यू नो एनी बायर लेट मी नो. मैंने कहा मुझे तो, मैंने ठीक है सर आई लेट यू नो. मैं फिर हम लोग बैठे, खाना पीना खाया, उनके घर गया. उनकी जो वाइफ है पूजा मैम, शी मेक्स अमेजिंग छोले भटूरे. वो हो. हाँ बहुत अनादाना डाल के. तो हमने वो खाया हुआ है, फिर मैं चला गया. 1 हफ्ते बाद मुझे पता चला कि मेरे भाई की किडनी फेल हो गई एंड मेरी जॉब चली गई. बिकॉज मुझे जॉब, मैंने जब लीव अप्लाई किया, उन्होंने मेरे लीव सैंक्शन नहीं किया, पेड विदाउट लीव कर दिया, और मुझे कहीं ना कहीं से निकाला नहीं डिप्लोमेटिकली. बड़ी कंपनी ऐसे नहीं निकालती है, बट मुझे ये पता चल गया कि मुझे यहाँ जॉब वापस नहीं मिली. साइडलाइन तो कर दिया. साइडलाइन कर दिया. तो मैंने कहा ठीक है अब हो गया सो हो गया. तो मैंने छोड़ा. थोड़े बहुत पैसे, हमारी एक ज़मीन थी वहाँ पे छोटी सी, पापा ने वो बेच दिया ताकि हम लोग ट्रांसप्लांट फंड कर पाए. और बट जॉब, नौकरी तो चाहिए. ठीक है, तो मैं आई वाज नॉट वेरी सीरियस अबाउट इट, बट आई वेंट टू हिम एंड ही सेड कि मैं उनके पास गया. मैंने कहा सर आप इसको बंद क्यों करना चाहते हो, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं इसको ठीक करता हूँ. ठीक है, मैंने सोचा यार कि शायद मैं कुछ कर सकता हूँ. ठीक है, इस तरीके से, बिकॉज बाई देन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था. नॉट लाइक आई वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर और समथिंग. बिकॉज ऑफ लवाजा देयर वाज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. बहुत कॉन्फिडेंस. फिर हिंदुस्तान लीवर में भी समझ में आया कि मैंने कहा इतनी बड़ी कंपनी में छोड़ने का रिस्क ले सकता हूँ, तो कुछ तो होगा मेरे अंदर. मेट्रो में भी अच्छा परफॉर्म किया था, बहुत बढ़िया था. वहाँ पे भी अच्छे बॉसेस थे मेरे, जिन्होंने बहुत बूस्ट किया मुझे. तो बहुत अच्छा मतलब थॉट प्रोसेस बना. तो मैं गया वहाँ पे और मैंने कहा यार कि मैं इसको ना आप मुझे दो, मैं आई वांट टू वर्क. तो उन्होंने भी कुछ ना आओ देखा ना ताओ, उन्होंने कहा यार लड़का आ जाओ. ठीक है. उन्होंने कहा आ जाओ. ठीक है, उन्होंने मेरी सैलरी फिक्स की. ठीक है, और थोड़ा सा कितनी सैलरी? 20,000 रुपये. 5, 10, 50, 20. ठीक है, 20. बट होता है. हाँ होता है. 20,000 रुपये सैलरी, बट उन्होंने इंसेंटिव फिक्स किया मेरा कि अगर कॉफ़ी शॉप इतना अच्छा करेगा तो तेरे को इतना इंसेंटिव मिलेगा. फैंटास्टिक ऑफर था. It fucking did really well. Well. So I joined in the first month and then मैंने पहला 1 महीना काम किया, जो भी थोड़ा बहुत ठीक करना था ठीक किया. मैंने उनको नहीं बताया कि मेरी
उनको आज भी नहीं पता, शायद अब ये देखेंगे तो उनको पता चलेगा। एक किडनी हाँ, उनको नहीं, उनको ये नहीं पता था कि मेरी जॉब चली गई। जॉब चली गई। उनको लगा कि मैं बाई चॉइस आया। अच्छा। हाँ, अभी भी उनको नहीं पता, अब शायद देखेंगे तो उनको समझ में आया। कोई बात नहीं, he'll be glad that you made that choice. तो उन्होंने फिर मैंने फिर उनको बोला यार कि मेरे घर पे ऐसा ऐसा हो गया है। तो उन्होंने बोला कि उनकी जो सिस्टर है वो डॉक्टर है, सिस्टर इन जो डॉक्टर है, तो उनसे बात करो। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने रेफरेंस दिया हॉस्पिटल का अपोलो में जान पहचान से। उनके पास हम गए, उन्होंने अच्छे से चेक किया। फिर मैं भाई का मैंने बोला मुझे महीना भर लगेगा। तो मैंने हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तो महीना भर रेस्ट ले ले, उसके बाद आ जाना। तो मैंने ट्रांसप्लांट कराया। एक महीने का उन्होंने पूरा मुझे पैसा भी दिया, 20,000 रुपये। तो मेरे घर का किराया और खाना निकल गया उनकी वजह से उस महीने का। फिर आई ज्वाइन 3rd मंथ में कॉफ़ी कप, एंड देन आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट मेरी थॉट प्रोसेस बदल गया, मेरी लाइफ बदल गई। मतलब आई डोंट नो व्हाट वेंट, मतलब आई बिकेम वेरी सीरियस अबाउट माई वर्क, वेरी सीरियस अबाउट माई लाइफ। आई एम लाइक आई हैव टू डू समथिंग, very focused. I have to do something. I became so concentrated about my everything that I'm doing. बहुत मतलब I became more of a family man. I don't know, emotion changed, thought process changed, और maybe ऊपर वाले की blessing changed. मतलब ऊपर वाले ने कहा कि भाई अब तो You were given more shakti at the right time. जा तू जी अपनी ज़िंदगी बेटा, बहुत स्ट्रगल मारा है तूने। Crazy. बहुत फोकस्ड हो गया मैं। एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन कॉफ़ी कप फ्रॉम मॉर्निंग 9 until 11 PM. I used to see you hustling there, man. हाँ, Yeah. hustled a lot, and Varun supported me a lot. ठीक है, so उस टाइम पे कॉफ़ी कप का सेल होता था 120-130 लाख, 1,30,000 a month। दिन Which का was for 3-4 that time हाँ, fucking big. हाँ 3-4 हज़ार रुपये नहीं, मतलब लॉस में ही था, नहीं उतना अच्छा नहीं था। मतलब द कॉफ़ी शॉप वॉज मेकिंग लॉसेस। Okay. Within 6 months the sales went up to 3 lakh rupees. After you joined. हाँ, after I joined. And Varun also, like I joined, so Varun used to guide me. ठीक है, I was the guy who used to execute. ठीक है, But the ideas were Varun's. हाँ, ideas were Varun, wholeheartedly. Like होता है कि आपको होता है ना कि आपके पास राइट हैंड होता है। Like स्टीव जॉब थे, वो पहले अनसक्सेसफुल थे, बट जैसे ही टीम कुक आया Yeah. वो सक्सेसफुल हो गया, बिकॉज उनके आइडियाज़ जो है टीम कुक ने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया। तो आई थिंक प्रॉब्ली आई वॉज द एग्जीक्यूटर, ही इज़ यूज टू कम एंड गाइड मी कि निशांत ये करना है, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारी चीज़ें, लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस ऑफ माइंड जो आज मेरा है। इवन दो टुडे ऑल्सो इफ आई गेट टू एनी ट्रबल और इफ आई गेट टू एनी प्रॉब्लम, मैं उनका ही ध्यान करता हूँ। मुझे लगता है अगर वरुण होता इस सिचुएशन में तो वो what कैसे would behave he करता। have done? Yeah. अभी भी मैं पूरा मिमिक नहीं कर पाता उनको, बट मैं अभी भी उनके बारे में बहुत सोचता हूँ। But I remember seeing you in the early days at Coffee Cup, and then like after a few months at Coffee Cup, you started emulating him a little, like a Yeah. few of your habits. हाँ, 100%. Your dressing changed. Still, हाँ, हाँ। Your dressing I changed. used to You wear changed shorts. your wardrobe. You started wearing shorts and sneakers and stuff like that, which was not there before. Not there. Which Varun used to do a lot. यार सी, कपड़ा तो यार बदल जाता है आपका, ठीक है ना। But yeah, they say that to become that, you have to begin with emulating. Like सी, कपड़े आपके बदल जाएंगे 100%, आप टीवी देख के ही बदल लोगे, बट जो यहाँ है वो कैसे बदलेगा? correct. वो तो उस बंदे ने बदला है। हाउ टू बी अ जेंटलमैन, हाउ टू हैंडल पीपल, हाउ टू टॉक टू elderly, how to talk to women, how to talk to kids, how do you talk to your servants, how do you talk to anybody on the street, how do you anything and everything that I am today is maximum credit. Like most of my bosses has played. I've been always surrounded with good people. Like a lot of good women, my mother, my masi. But it's not enough to be surrounded by good people. You should also have the consciousness to like take something from them, like grab हाँ, what is there to. You can say, but Be see, grabbed. आप जब आसपास होते हो अच्छे लोग हैं ना, तो आप बन जाते हो यार। हर आदमी को अच्छा बनने में मजा आता है, चांस नहीं मिलता है, मुझे ऐसा लगता है। आपको अच्छे लोग के आसपास रखो तो सही हो जाते हो आप। Correct. हाँ। They say, I mean, it's a cliche, but they say that you're a sum of the 5 people that you hang out with. 100%। मेरे लिए तो एक ही आदमी था, वरुण। हाँ, so he changed my life a lot. And then मैं सर्जरी करा के वापस आया, he gave me the same warmth, 3 लाख रुपए सेल हो गया, एंड मेरी सैलरी 20,000 रुपये जो थी, उस पर जो इंसेंटिव था वो 40,000 रुपये था। Fuck. तो मैं 6 महीने का मैं डिप गया, बट मैं सीधे 60 पे आया। मैंने कहा यार ये बढ़िया चीज़ है यार, मज़ेदार जगह है, ठीक है, काम करने में मज़ा आ रहा है, बॉस सॉलिड है। पेल के लोग कॉफी पी रहे हैं। हाँ, लोग But what was this fucking obsession with coffee that started, man? Like, how come so many people started obsessing over coffee? I think it was not there before. How did this, like, coffee, let's go and have a cup of coffee, कब बोलना शुरू किया लोगों ने यार see, अचानक?
इंडिया की अगर बात करो, सीसीडी ने तो स्टार्ट किया कल्चर 100%. Because I don't remember when I was growing up, I never heard anything like, you know, people telling let's go and grab coffee, let's meet for coffee. जो ऐसा कुछ नहीं था यार. नहीं Later, like, you know, a few years later, यार सीसीडी ने बहुत कुछ चेंज किया. सी people texting each other all the fucking time, let's meet up for coffee. What is this coffee yaar? Is it like a statement? Is it really the taste? Is it the high? What the fuck is it? एवरीथिंग सब मिला, सबका मिक्सचर है. It's a statement also, it's a high also, Yeah. it's a kick also, it's a... एंड द प्रोडक्ट इज फकिंग गुड. इट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट. आप कभी सोच के देखो, पिछले 500 साल का हिस्ट्री निकाल के देखो आप, इतिहास जो बोलते हैं हिस्ट्री, पिछले 500 ईयर्स के पहले कितने इवोल्यूशन हुए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू नो हमारे जो यू नो ऋषि मुनि और उस एरा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी ये करंट वाला टाइम की बात कर रहा हूँ. 400-500 साल पहले कितने डिस्कवरीज हुई थी दुनिया में. कभी सोचना इस बारे में? नॉट मच, बिकॉज वाटर वॉज नॉट सेफ टू ड्रिंक. Right. ठीक है, पीपल वर ड्रिंकिंग फर्मेंटेड वाटर विच वॉज वाइन. सो हाफ ऑफ द टाइम पीपल वर ड्रंक. Right. अब 1500 सदी से पहले, 16वीं सदी से पहले, 16 बिफोर 1500 1600, आप पहले लोगों को देखो, एवरीबॉडी वाज ड्रंक. All the fucking time. या बिकॉज यू आर ड्रिंकिंग फर्मेंटेड वाटर विच इज Tipsy all the fucking time. which was your wine. Then the evolution of coffee and tea happened. Which was also brought in by the... Hot water. English. See, coffee was discovered in Yemen, technically. Yemen. Yeah. But the tea was brought in by the English, right? No, tea was also, you know, see, they don't grow anything. वहाँ पे कहाँ कुछ grow होता है? Grow तो सब कुछ यहाँ But they होता है. realized that it grows here and they came and started actually the see, plantation. because of colonization. That's what I've heard. See, I don't know. Because of colonization, they made it popular. Correct. Because उन्होंने spread किया बहुत. चाय को. चाय को, कॉफी को. उन्होंने because and they were good at you know presenting things. Correct. So a lot of credit goes to them. But Yemen में coffee discovered, a goat, you know, the goat man discovered coffee because goat used to eat Chew coffee. on that and get fucking get very hyper. high. So उसने discover किया. And then Middle East में बहुत सारे सालों तक लोगों ने इसको ऐसे they kept it as a secret. So when the merchants of Middle East, when they used to go to the African countries, when they used to go to Europe country for you know exchanging the goods or you know for trade, they had more energy than anybody else on the planet. So Europeans most of the time used to think he's ऐसा साला क्या है? How the fuck are they so active all the time? All the time. ठीक है, बिकॉज हम तो साले ड्रंक है. ठीक है, ये साले एक्टिव कैसे है इतना? तब उनको समझ में आया कि भाई इनके पास ना, फिर उन्होंने कुछ लगाया, स्पाइस वाई लगाने में तो माहिर थे वो, घुस जाते थे अंदर आपके. Correct. ठीक है, जैसे गोवा में घुस गए थे. एथिक्स थोड़ी कम थी उनकी, तो घुस गए अंदर, उन्होंने निकाल लिया पूरा. ठीक है, और फिर उसको पॉपुलराइज कर दिया. उनको पता चल गया कि ये तो गोल्ड है, दिस इज लिक्विड गोल्ड. This is liquid gold. तो आप देखो उसके कॉफ़ी और चाय की डिस्कवरी के बाद, आप सोचो अगर आइंस्टाइन, मतलब हो सकता है मुझे बैकलैश आए इस बात पे, बट आप सोचो आइंस्टाइन या स्टीव जॉब या जुकरबर्ग या बहुत सारे लोग या सैम ऑल्टमैन या इतने सारे जो लोग हैं दुनिया में, अगर वो उस एरा में होते और दे वर ड्रिंकिंग फर्मेंटेड वाटर, आपको लगता है इतनी सारी डिस्कवरी हुई होती? कॉफ़ी हैज So are you saying that coffee, या 100%. कॉफ़ी एंड टी, आई एम जस्ट नॉट गिविंग क्रेडिट टू कॉफ़ी. like stimulation या द हॉट वाटर with caffeine? with caffeine, coffee and tea has played a very significant amount of role in humans' history. In people pushing themselves. No, to keep you sane, to keep you conscious. Okay. If you're conscious, if you're sane, I'm sure you will do a lot of things in your life. Well, this is my theory. Maybe I'm wrong, but you know, I don't want, you know, I don't hesitate in saying this. Imagine यार, हम सुबह बैठ के बेर पी रहे हैं. घंटा 7 बजे यार, मतलब आप बताओ. What do you think? Can you imagine yourself? केरला, तेलंगाना, आंध्रा में होता है, but नहीं, हर जगह होता है. पंजाब में जगह भी होता होता है. है, बिहार में भी होता बिहार में है, भी होता है. मतलब बंगाल में भी होता है. बट अगर ऐसा क्यों है कि दिन की शुरुआत लोग चाय या कॉफी से कर रहे हैं? कुछ तो होगा. कुछ तो होगा. कभी सोच के देखना, इसके पहले आप मतलब आप जाओ रिसर्च करो, कितनी डिस्कवरी हुई है 1600 के पहले, 1700 के पहले. बहुत डिफिकल्ट डिस्कवरी थी नहीं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऋषि मुनि वाला एरा, वो तो बहुत जीनियस लोग थे यार. उन लोगों ने तो इंट्यूशन से ही काफी कुछ. हाँ, वो लोग बहुत जीनियस थे. आई एम टॉकिंग अबाउट हमारे वाले लोग जो अभी साधारण लोग. 400 साल में कितनी डिस्कवरीज हुई हैं. एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू कॉफी एंड टी, जस्ट नॉट कॉफी टी. सो फर्स्ट, सो आंसरिंग टू योर क्वेश्चन, प्रोडक्ट इज अमेजिंग एंड देयर इज समथिंग विद दिस प्रोडक्ट. लाइक प्रोडक्ट बहुत प्यारा है. There is a taste and you know you like it and you enjoy There it. is an aroma, there is a fucking taste, there is a feeling, and it's also a statement. So it actually product is good. It has to see, आप कितना भी statement बना लो, आप कितना भी कुछ कर लो, अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है ना, तो एक तो type क्यों of पियोगे?
हो जाएगा, ठीक है. So product is good and also you know it's healthy. Like you know there is only one beverage in the world जिसके ऊपर 50 साल का एक रिसर्च पेपर है जिसमें ये कहा गया है कि 2 cups of coffee a day keeps your liver healthy. Black or with milk? I think black. I think black. 2 cups of coffee. 2 cups of coffee. Keeps your heart also healthy, I think. हार्ट वाला तो पता नहीं बट लिवर के ऊपर तो रिसर्च पेपर है. Okay. हाँ 50 साल का है तो प्रोडक्ट अच्छा है. बट हुआ क्या ना, मूवीज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. Movies. हॉलीवुड की मूवीज जो 90 से 2000 में आई ना, स्टारबक्स को आप नोटिस करना, एंजेलिना जोली, ब्रैड पिट, टॉम क्रूज, जितने बड़े स्टार A थे lot of people sitting and having coffee in the movies. सिटिंग एंड हैविंग कॉफी और दे आर रोमिंग विद अ कप ऑफ कॉफी इन Roaming देयर with a cup of coffee, and there used to be this fucking small machine or something like that. And coffee was the morning ritual. Also, I was like before the interview, I was telling Nayantara that in Bollywood and Tollywood also, in the early 2000s, lot of couples started meeting in cafes. Coffee shops. उसके पहले बीच पे, मंदिर में, बस शेल्टर में, रोड पे, पहले तो गरीब वाली मूवी या बनती फिर थी. चाय के ठेले पे हाँ, वहाँ मिलते थे. हाँ. उसके बाद कपल स्टार्टेड मीटिंग इन कैफेज बिकॉज व्हेन द अर्बन स्टोरीज स्टार्टेड कमिंग इन, कैफेज बिकम अ ह्यूज पार्ट ऑफ द स्टोरीज. पहले की मूवीज आप देखना ऐसे या तो गरीबों वाली होती थी तो आप बस शेल्टर पे मिलते थे, या यू नो आप ऐसे उधर मिलते थे, या तो आप बहुत ज़्यादा अमीर हो तो अमीरों वाली मूवी जो होती थी वो रईसों वाली थी. उसमें फिर देन आपको दिखाया जाता था कि आप अगर आप अमीर हो तो आप बेकार आदमी हो, करेक्ट. ठीक है. फिर आप डॉन टाइप के हो, आप सिगार पी रहे हो, सुबह उठते के साथ विस्की पी रहे हो, बियर पी रहे हो, Correct. वो वाला सीन होता था. हम्म. 90s में और 2000 में चीज़ें बहुत बदली, बदली. चेंज हुआ, अर्बनाइजेशन वाइज से स्टारबक्स ने बहुत कुछ बदला. हम्म. स्टारबक्स मूवीज़ में आया, बहुत सारी मूवीज़ में. हम्म. आप स्टारबक्स का लोग कहते हैं यार स्टारबक्स ऐसा है वैसा है, यू नो द वे दे हैव बिल्ड द ब्रांड इज अमेजिंग, इट्स फैंटास्टिक. उसके लिए बहुत थॉट प्रोसेस चाहिए. आपको पता है स्टारबक्स हैज़ बिल्ड द टेक अवे कप्स इन द वर्ल्ड. उसके पहले टेक अवे कप्स होते थे, लिड नहीं होता था. So that was takeaway because- cups with lids was first Starbucks brought in by discovery. Starbucks. या तभी तो उनका उतना कुछ क्रेज है यार. Crazy man. ऐसा नहीं होता है कि यू नो कोई ऐसी फ्लूक से चल रहा है, नहीं. किसी ने किसी बहुत कुछ किसी किसी टाइम पे किया है जिसका क्रेज बहुत लंबा चलता है. Okay. चलो कॉफी कप हो गया, स्टारबक्स हो गया, कॉफी का ऑब्सेशन हो गया. यू सेइंग टेस्ट है इसीलिए चल रहा है, अदरवाइज सिर्फ स्टेटमेंट में तो नहीं चलेगा. बट देन लेट्स कम बैक. People go for statement and then they get Fall in hooked. love with the taste. They get hooked to it. Let's talk about roastery. First, like for people who don't understand what roastery means, what is roastery? Roastery क्या होता है? See, roastery is basically a space where you roast. Okay. Okay. In our case, we roast coffee. So we are a big advocate of Indian coffee. We source all our coffee from one of those finest farms, coffee farms available in India. So we go and pick up the best quality beans available in the coffee farms of India. We bring it here and then we roast by ourselves. Okay. So you know, in coffee, most things. I mean, every step of the coffee is important, but roasting is also very very important. So we have our own recipes through which we roast coffee. We kind of develop the taste profile and the characters in the coffee, and then we brew it fresh. So roastery means our coffees are freshly roasted and freshly brewed. Wow. Yeah. How did the first roastery happen? So again, coffee cup में I spent 6-7 years. बहुत कुछ सीखा वरुण से. Life changed. Became very curious about coffee. That was the time when I became curious about coffee because the world of coffee was changing, and it became my hobby, my life. I could not live without coffee. It became my very personal. Like you know, the only thing that I really loved was coffee. And you thought something can be built on Something this. can be built on it. Because of Varun, entrepreneurship आया मेरे अंदर, उसने बहुत thought process shape किया. Then I realized that I can do something of my own. So बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हुई. And then the world of coffee was moving towards the specialty, the high quality coffee. Indian coffee was also kind of making noise. And then because you know when I was working with Varun, so because of Lavazza, I had a lot of connect with the coffee farmers. Correct. वहाँ से मुझे coffee farms, तो जब वरुण के साथ मैं काम करता था तो मैं holiday लेता था. So I used to go and live in the farms. Coffee farm. हाँ coffee farms में वहाँ पे जाके मैं रहता था. तो वहाँ पे I saw the So it coffee. became personal for you, man. This हाँ, whole the- coffee thing. हाँ, it Like became personal. even on There- your fucking vacations, you were going and living on हाँ, coffee farms. Coffee farms, हाँ, हाँ. Wow. हाँ, and then वहाँ पे I realized that Indian coffee में single state है, coffee farms हैं, Google आ गया था, तो single state डाला तो बहुत सारी information निकली. फिर Indian coffee के बारे में समझ में आया. Then I saw you know one brand in Delhi,
नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया डूइंग फैंटास्टिक। उन्होंने द होल इंडियन कॉफ़ी स्टोरी स्टार्ट की। मैंने कहा दिस इज फैंटास्टिक यार, ये तो सारा एक्सेस मेरे पास है। एंड ब्लू टोकाई वॉज द ब्रांड, दे डूइंग फैंटास्टिकली वेल नाउ, द फाउंडर्स एंड वी आर वेरी गुड फ्रेंड, सो दे आर डूइंग वेरी वेल एंड दे स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली। सो उनको मैंने देखा कि यार मतलब जो मैं सोच रहा हूँ उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है, तो वहाँ से काफ़ी मैंने सीखा, इंस्पिरेशन लिया। मैंने कहा उन्होंने ऐसे बनाया एंड मैं सदर्न पार्ट में तो कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं कर रहा है, तो लेट मी स्टार्ट। मतलब इतना नहीं था कि सदर्न में, हैदराबाद में कोई नहीं कर रहा है। एंड आई ऑलवेज मिस यार, मतलब दो आई वॉज वर्किंग इन कॉफ़ी कप, बट द कॉफ़ी क्वालिटी, आई मीन दो आई वॉज द इंचार्ज देयर, आई वॉज द मैनेजर देयर, I could not, do good with a coffee over there, because Coffee Cup is more of a nostalgia. It's more of a good food place. Good vibe. Good vibe, good food, a lot of music. But the happening coffee there. was okay. The coffee was decent. Not even okay, it was Decent. below average or Below average, average. I would say. It was an event space जहाँ पे stand up comedy, music ये सब होता था. Correct. It was a typical cafe, but that era. But it was not a coffee cafe. More of a space than a place for coffee lovers. हाँ, Like. सो कॉफ़ी डिसेंट थी, मैं ही बनाता था, मेरा ही सब मैंने ही करता था, बट फिर भी आई कुड नॉट डू इट वेल। सो टू बिल्ड अ कैफ़े, यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ द कॉफ़ी कैफ़े। बट हैदराबाद, पूरे हैदराबाद में कोई भी ढंग का कॉफ़ी शॉप नहीं था जहाँ पे अच्छी कॉफ़ी मिलती हो। And the beans were not being sourced from the right places. नॉट सब यही लवाजा, Coffee CCD Day. और इली और इन सब से लेते थे, तो वो इनोवेशंस नहीं थी। और मेरे पास वो सारा इन्फॉर्मेशन था, बिकॉज मैं 17-18 साल नोइंगली अननोइंगली मैं कॉफ़ी इंडस्ट्री में ही रह गया। मतलब CCD, लवाजा, HUL में मैं ब्रू कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी बेचता था, मेट्रो में भी मैं कॉफ़ी डिवीज़न में था, तो नोइंगली कॉफी ने पकड़ लिया. पकड़ लिया। हाँ, मतलब मैं कॉफ़ी में गया नहीं, कॉफ़ी ने कॉफी तुम्हारे अंदर आ गई. कॉफ़ी मुझे तुम्हारे पीछे आ गई. कॉफ़ी बोला तू आ जा बेटा इधर, तेरा कॉफी में ही कुछ लिखा है. हाँ तू मेरे लिए बना है। योर स्टोरी इज रिटन इन ब्राउन. हाँ 100% इट्स रिटन इन ब्राउन, तभी रोस्ट्री का लोगों को सब ब्राउन है। हम पीला यूज़ करते हैं बट ब्राउन बहुत है, एज यू सेड। तो आगे हम फिर जब मैंने रोस्ट्री स्टार्ट किया, मेरे पास उस टाइम पे भी लकली आप देखो द सर्कल ऑफ लाइफ, मेरे पास 2000 रुपये थे, बिकॉज कॉफ़ी कप में जब मैं काम कर रहा था आई वॉज पेड वेल, वरुण रियली लुक्ड आफ्टर मी, पेड मी वेरी वेल। एंड वहाँ पे मेरी सिस्टर की शादी थी, ठीक है, रोस्ट्री स्टार्ट होने से 8 महीने पहले मेरी सिस्टर की शादी थी। तो मतलब मेरे पास जितने पैसे थे मैंने सब लगा दिए, ठीक है। तो मेरे पास पैसे नहीं बचे, और मैंने थोड़े से लोन भी लिए थे वरुण से, तो मैंने उसको वापस भी किया, करते करते टाइम निकल गया। तो जब मैंने रोस्ट्री स्टार्ट करने की सोची, तो आई टोल्ड वरुण वेरी क्लियर, वरुण आई वांट टू डू समथिंग ऑफ माय ओन, एंड ही वाज आल्सो लाइक कि ठीक है गो फॉर इट. हाँ गो फॉर इट, मतलब वेरी फेयर गाय, मतलब उससे ज़्यादा फेयर आदमी आपको दुनिया में मिलेगा नहीं, बहुत बढ़िया होता है। तो उसने बोला गो फॉर इट। तो फिर आई सॉ दिस प्रॉपर्टी, ठीक है, मैंने बुक मतलब गूगल नहीं, उस टाइम पे मैजिक ब्रिक्स पे मैंने सर्च किया, आई सॉ दिस प्रॉपर्टी, आई वेंट टू द ठीक है, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, हाँ, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई फेल इन लव अगेन। At that point in time, you fell in love again. I fell in love again. Yeah, I was dating a girl. Varanasi 2. Hyderabad, I think Hyderabad 1. Hyderabad 1. So that girl actually pushed me. यार कि तेरे पास ना टैलेंट है, तो कुछ कर, तू कुछ कर, सॉलिड कर। तो so a friend of mine उस टाइम पे, again a girl, coming to my life and pushing me. I met her at Coffee Cup and then she became my friend and then she pushed me a lot. She's like तेरे अंदर टैलेंट है तो कुछ कर सकता है। And then she was the one who found this property, Magic Bricks पे. Wow, man. She was an architect, ठीक है, and she's the one who set the tone for roastery, the base for roastery. जो रोस्टरी की बहुत सारी डिजाइन लैंग्वेज अब तो काफी इवॉल्व हो गया। Lot has this theme and aesthetics and रोस्टरी बंजारा हिल्स वाज बिल्ट बाय हर। प्रॉपर्टी Where did the money come from, bro? मेरे पास 2000 रुपये थे। Again, जो मैं 2000 हैदराबाद आया था दिल्ली से, सब सर्कल अप्लाई 2000 रुपये थे। हम लैंडलॉर्ड के पास गए, लैंडलॉर्ड हमारी बहुत प्यारी है, शी इज़ अमेजिंग, मतलब मैं उनको मदर की तरह ट्रीट करता हूँ, काफ़ी उन्होंने हेल्प किया। तो मैं उनके पास गया, हम लोग गए और मैंने बोला कि मैम मतलब मेरे पास पैसे तो थे नहीं, तो उन्होंने बोला कि मैंने कहा कि मैम मुझे ना एक हफ्ते, मैम ना 50-60 हज़ार रुपये का रेंट देख रहे थे कि 50-60 हज़ार रुपये का रेंट मिल जाएगा ना तो लाइफ अच्छी है। उन्होंने 1,20,000 रुपये का रेंट बोला, मैं तो पहले ही डबल, मैंने कहा मैम से नहीं होगा। तो फिर मैंने पता किया तो लोगों से पता चला नहीं है 1,20,000 का भी रेंट सही है, अच्छा है इस जगह के लिए, इस जगह के लिए बहुत प्राइम अच्छा। लोकेशन। हाँ 2017 में तो लोगों ने बोला अच्छा है, ठीक है। तो फिर मैं गया दोबारा उनके पास, मैंने बोला कि मैम आप ना मुझे एक हफ्ते के लिए चाबी दे दो,
ठीक है, घर की मुझे ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लाके बिल्डिंग को दिखाना है, बिकॉज रेजिडेंशियल एरिया में तो पता नहीं मुझे लाइसेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उन्होंने ट्रस्ट किया और मेरे पास 2000 थे, मैंने उनको 60,000 रुपये दिए। सो बाकी जो 58,000 था वो ऐसे आया कि 8,000 रुपीज़, ठीक है, मैंने कुछ दोस्तों से उधार दिए और मैं अपने भाई के पास गया, ठीक है। सो उस टाइम पे मेरा ब्रदर जो है, मतलब 3 साल तक किडनी ट्रांसप्लांट में उसने इंजीनियरिंग छोड़ दी, एंड देन ही वाज स्टडीइंग, फिनिश हिज ग्रेजुएशन इन हैदराबाद एंड स्टार्टेड वर्किंग समवेयर, एंड ही हैज़ अ गुड, मतलब ही गॉट अ वेरी गुड फ्रेंड सर्कल, ही इज़ वेरी सोशल, एंड उसका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है। तो मैंने उससे 50,000 रुपये उधार दिए, उसने अपने दोस्तों से लिए, किसी से 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे करके उसने मुझे 50, तो मेरे पास 60,000 थे। सो 60,000 रुपीज़ मैंने उनसे लिए और मतलब 50,000 उससे लिए, 10,000 मेरे पास थे, 60,000 लाके मैंने मैम को दिया। मैं चाबी लेके यहाँ पे आया, एक लोकल मेसन को हायर किया, मतलब जो मेरी फ्रेंड थी उनके थ्रू ही, और उनको मैंने मतलब मेसन को बोला तो मैं कुछ तोड़ता फोड़ता रहा, ऐसे ही लगा कि कुछ काम हो रहा है। तो जब मैं कॉफ़ी कप में काम करता बहुत अच्छा काम किया। ये 2 सारे आइडियाज़ वरुण के थे, मैं एग्जीक्यूटर था, मैं एग्जीक्यूट करता था, बट बहुत सारे लोग जो उस टाइम कॉफ़ी शॉप में कस्टमर्स थे ना, वो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस देते थे, कहते तू कुछ करेगा ना तो मैं पैसा लगाऊंगा। तो बट बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जेन्युइन लोग थे, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया। तो 5-6 लोगों ने मैंने बुलाया यहाँ पे, मैंने कहा सर मैं अपना कॉफ़ी शॉप स्टार्ट करूँ। मैंने ये नहीं बोला कि मुझे पैसे चाहिए, मैं अपना कॉफ़ी शॉप स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको पार्टनर तो बताइए। मैंने प्रॉपर्टी ली हुई है बंजारा हिल्स में, 5-6 लोग आए, उसमें से 3 आदमी ने एग्री किया कि हम पैसा लगाएंगे। एक आदमी जो है वो आया ही नहीं, फिर 2 आदमी बचे, तो आई वॉज, मेरे 2 आदमी थे, और मैंने उनको बोला कि ये प्रोपोजिशन इतना पैसा लगेगा, ठीक है, और देखो काम स्टार्ट हो गया है, और माई फ्रेंड वॉज देयर एज एन आर्किटेक्ट, तो उसने लेआउट बना दिया टका टक करके, तो लोगों को लगा कि बन रहा है, ठीक है। एंड उन दोनों के पास थे बफर पैसे, उन्होंने भी ये नहीं सोचा था कि ग्रोसरी ऐसा बनेगा, उन्होंने बफर पैसे थे, तो उन्होंने एज अ पार्टनर, मतलब उस टाइम पे इन्वेस्टर और फाउंडर नहीं होते थे, पार्टनर्स होते थे, इन्वेस्टर फाउंडर अब आया, पहले पार्टनर्स होते थे। तो उन्होंने थोड़े जो उनके पास पार्क किए हुए पैसे थे, मतलब दे डिडंट इवन केयर, उन्होंने वो पैसे मुझे दे दिए, एंड दैट्स हाउ रोस्ट्री स्टार्टेड। Fuck. So women have played a very important role, man. Always. And coffee was always written, I think. Always. So now you have Kolkata, you have Lucknow, you have Jaipur, you have what all do you have? Second Calcutta, then Delhi, ठीक है, then Noida, Lucknow, Jaipur, and Finland. And all these new branches were funded by the Hyderabad branch? Yeah, the Calcutta was funded by Hyderabad. Okay, and then Calcutta is even more bigger success than Hyderabad. For Really? Us. Yeah. Brand value wise, Calcutta, people of Calcutta loved us. And you're sourcing your beans from where all? Chikmagalur. Mostly Chikmagalur. Okay. Mostly Chikmagalur. And I mean, I used to see reels from before, you traveling to those coffee farms and then sourcing beans and bringing them here. Fuck, I used to be jealous, man. But in a good way. But fuck, amazing. So how did the Europe thing happen? Tell us fast. See, Khula, Hyderabad, overnight sensation. This kind of innovation, this kind of product nobody has seen. Like we changed the whole game. Like how the coffee shop looked like. The coffee shop का जो character था हमने बदल दिया. TV screen हटा दिया, music हटा दिया, performance हटा दिया. Purely running on product. Good quality coffee, high quality coffee. The way you present your coffee, like हमारे से पहले ceramic cups नहीं होते थे. Like हमारे से पहले white cups होते थे या फिर अलग तरह के cups होते थे. We changed the presentation, we changed how it looks, table service, everything we changed. People loved us overnight. Crazy kind of. It became a rage, man. It became a rage. It became a rage, and that's why I realized that this has even more big potential. Then I had 2 options. Okay, I sat one day and I had 2 options. And again, that friend of mine, जिन्होंने मुझे help किया ये सब करने के लिए, she had a role until then only. उसके बाद she moved out of my life. Yeah. तो वो हो गया. तो I realized I had 2 options. One, I stay here, make this coffee shop the world's finest coffee shop. Only one. Focus on one. Only one. Focus on one. And then, दुनिया में कहीं भी बात हो ना तो लोग कहें यार एक हैदराबाद में कॉफी शॉप है, रोस्ट्री कॉफी हाउस, वहाँ जाओ. I had that option. And the second option I had was to make it this experience, take it to other places. The 2 goals that you can do out of it. One, you can generate more revenue,
which ultimately contributes to the economy in a very little way, whatever ways. Like, you know, अगर मैं इसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉफ़ी शॉप बनाता और यहाँ रहता, प्रॉब्ली शायद मेरा घर बहुत अच्छा चल रहा होता और मैं अपना ईगो बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करता कि आई एम द बेस्ट, राइट? बट आई थॉट कि हाउ कैन आई मल्टीप्लाई, create more revenue, create more jobs, okay, you know, satisfy myself more, you know, because you know आप बहुत अच्छा कर सकते हो. पॉवर्टी मैंने बहुत देखी है बचपन में, और अगर हमारे जैसे लोग, बहुत सारे लोग जिनके पास कुछ अच्छा है, जिनको एक कुछ रास्ता मिल गया है, अगर इफ़ दे डोंट ग्रो, इफ दे डोंट मल्टीप्लाई, ये यू नो लूप ख़त्म नहीं होगा. अगर आप देखोगे तो यू नो बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. If you've given the opportunity to multiply, multi-fucking-ply. And that way you can support a lot of people. as well. Don't get yourself into your ego. You are the best. You multiply. You know, make it, and then you know care for people. Care for people. Care for people. ठीक है, you know, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब you know आप business को खराब कर दो just by caring for people, but हाँ. Not just emotion, but emotion is very, very very fucking important. important. So that's how you know, and then उसके बाद thought process clear होगा कि यार इसको तो बड़ा बनाना है. Because I saw what happened here in Hyderabad, and then that's how Calcutta happened, other cities happened. ये सारा कुछ हो गया. फिर मेरे लाइफ में बीच में एक पार्ट आया था जिसमें आई रियलाइज दैट बीइंग कंफर्टेबल इज बैड. लाइक द मोमेंट आई गेट इनटू कंफर्ट जोन यू आर डेड. सो अभी भी मेरे लाइफ में वही होता है, द मोमेंट आई गेट इनटू कंफर्ट जोन. लाइक मैं हैदराबाद में 4 दुकानें और खोल सकता था, बट आई सेड नो, ये बहुत कंफर्टेबल काम होगा मेरे लिए. आई डोंट वांट टू ओपन 5 कैफेज इन हैदराबाद. आई वांट टू ओपन 1 इन यू नो आउटसाइड हैदराबाद. दिस इज साउथ ईस्ट में खोलेंगे. देखते हैं हाउ मच आई कैन पुश माई सेल्फ, लाइक बिकॉज दिस इज व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द किडनी ट्रांसप्लांट. तो मैं कैलकाटा खोला, फिर कैलकाटा खोले हुए कैपिटल ऑफ इंडिया करते हैं यार, वहाँ पुश करते हैं अपने आप को, वहाँ पुश किया. दिल्ली ऑल्सो बिग सक्सेस. Europe, how did Europe happen? मैंने इंडिया में यार मतलब काम थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया है. अब इंडिया भी कंफर्टेबल हो गया. India पहले भी हैदराबाद comfortable. कंफर्टेबल था, अब इंडिया भी कंफर्टेबल हो गया. You need a bigger canvas. So then That's like a solo thing, or are you like all of, so 2 of the partner who you know Initially gave money, उनमें से एक जो है he you know took exit, and then he started his own chain of coffee shop. which is कैलकाटा में है, क्राफ्ट कॉफ़ी का नाम. Craft Coffee, okay. He's doing very good. One of the partner is still with us. Okay. But you know eventually we you know opened multiple brands like Local, BSGs and Atheka Cafe, because my wife joined the business, my brother joined the business. Right. Yeah, so my wife became the you know the source of inspiration right now. She's the one who pushes me. Like if I'm like sleeping and getting lazy and getting comfortable, she's like, bro, Your wife is the now and forever Varanasi. forever. So वो मुझे बहुत पुश करती है. तो यू नो फिर देन नाउ वट एवर यू सी इट्स कम्प्लीटली बिल्ट बाई द फैमिली, लाइक मी, प्रशांत, माई वाइफ, एंड माई वाइफ सिस्टर ऑल्सो, माई सिस्टर इन लॉ, शी ऑल्सो जॉइन द बिजनेस. सो 4 of us completely we have built this on our own. There is no other partners Except the one of the initial 2 partners. Insane, man. So pushing the boundaries is what happening now. I don't know which direction it will go from Next, here on. you don't know what's ठीक है, next. I don't know. I'm not looking at that कि you know क्या करना है. I'm sure ऊपर वाला रास्ता दिखाएगा कि करना क्या है, होगा कैसे, वो सब है. हो जाएगा. हो जाएगा. But हाँ, comfortable नहीं होना है. Comfortable नहीं होना and never think that the puzzle has been solved. There are still some pieces, no matter where. वो कहते हैं ना यार, मतलब एक बड़ा सही था थ्योरी, मतलब ऐसे ही रात को कभी सोचा मैंने, जैसे कहते हैं ना कि लाइफ इज सर्कल, राइट, ऐसा राउंड सर्कल है. तो अब सर्कल्स, कुछ सर्कल स्मॉल होते हैं, कुछ सर्कल्स बहुत बड़े होते हैं. ठीक है, तो अगर आप स्मॉल सर्कल में हो, राइट, तो आपकी लाइफ यहाँ से खत्म होगी, तुरंत खत्म हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा. आप अपना सर्कल बड़ा बनाते जाओ. कभी यहाँ पीक पे पहुँचो ही मत, सोचो ही मत कि आपका पीक आया. आप ऐसा सर्कल ऐसे Just bigger circles. जैसे ही आपको लगे कि सर्कल आप ऐसे जा रहा है ना, उसको और ऐसे कर दो. पीक पे मत पहुँचो कभी, सोचो ही मत कि आपका पीक आया. That you've arrived. यार देखो, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, आई स्ट्रांगली फील दैट सबकी अपनी जर्नी है. तो पहली बात तो आप किसी से इंस्पायर मत हो. Okay. कभी मत हो. कल्ट वाले चक्कर में मत फंसना. कल्ट इज़ बैड. Okay. कि निशांत ने ये किया तो मैं भी यही करूँगा, जेफ बेजोस ने ये किया तो मैं भी यही करूँगा. ठीक है, लवाजा ने ये किया तो मैं यही Everybody has their own. एवरीबडी हैज़ देयर ओन जर्नी. सबकी अपनी अपनी जर्नी है. मेरी जर्नी मेरी खुद की बनी हुई है, या
कहीं से बनी है, आपकी अपनी जर्नी होगी। आप प्लीज़ किसी की जर्नी में बिलीव मत करना, आप किसी को कल्ट मत बना लेना कि यही बुक है। देयर इज़ नो रूल बुक, देयर इज़ नो रूल बुक। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने स्टार्ट किया था रोस्ट्री, तो लोग बोलते थे कि हॉस्पिटैलिटी में 25% का मार्जिन बनना चाहिए। मैंने कहा यार ये बुक किसने लिखी है, मेरे को ये बुक नहीं फॉलो करनी है, मैं 18% का मार्जिन बनाऊंगा या 15% का मार्जिन बनाऊंगा। तो मैंने लो मार्जिन पे खेलना स्टार्ट किया। तो आपको ऐसा लगेगा कि यही रूल बुक है, बट देयर इज़ नो रूल बुक। फक द रूल्स। फक द रूल्स। आपकी अपनी जर्नी है और चॉइस है। अगर किसी को छोटे सर्कल में भी रहना है, आपकी मर्जी। आपकी मर्जी है। आप खुश हो, मज़ेदार, कोई दिक्कत नहीं। आपको बड़े सर्कल में घुसना है, वो आपकी मर्जी है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वॉट एवर यू डू, बट हाँ, मेक अ कॉन्शियस चॉइस। मतलब आप किसी से मोटिवेट होके या किसी से इंस्पायर होके या किसी की बातों में फंस के कुछ नहीं करना है आपको। अगर आपको सही में अंदर से आ रहा है, ठीक है, अगर आप इफ़ यू बिलीव इन योर कॉन्शियसनेस, अगर आपको लग रहा है कि ये करना चाहिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस नीड टू बी डन बाय यू, देन ओनली डू इट। कल्ट में नहीं फंसना है, किसी से मोटिवेट नहीं, मतलब किसी से इंस्पायर नहीं होना है। थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन ले सकते हो, आप सीख सकते हो, थोड़ा सा समझ सकते हो कि आपके लिए क्या लेकिन काम करना तो खुद का ही, वॉइस तो खुद की ही सुननी है। खुद की सुन, इनर वॉइस। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन किसी और पे, आप अपनी इनर वॉइस पे फोकस करो, वो आपको बता देगा कि करना क्या है। क्रेजी। बट इस पॉडकास्ट से बिल्कुल कोई मोटिवेशन नहीं लेना, कोई ज़रूरत नहीं है। मत लेना बहनचोद। बिल्कुल। पॉडकास्ट मत शुरू करना, बहुत हो गया। Thanks a lot, brother. Thanks, Thank you for thank talking you. to us, Thank you, Nishant. man. Thank you, Nayantara.